कोई स्कूल खुलेगा नहीं, एंड दैट विल बी वो तो स्कूल अथॉरिटीज को पता चलेगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज का मैसेज आया है कि नहीं आया है. So if you are getting like that, then the school will reopen. Then there are chances. Ma'am, But till now, but 10th is started without an 10th का अलग है भाई. 10th is different. 10th is different. They are the board exam students. Okay. So you are not the 10th board exam students. Okay. Ma'am, how? Physical and offline, that school can tell. I can't tell. So I will not interfere in that. Till now, no grasp about that, whether it will be physically or online. Okay. Offline, online, that I can't tell now. Okay. That depends totally on the government. Okay. Leaving that, I am telling you what, now you will be having both subjective and objective. एक दिन आप subjective का तैयारी कर लो, because every day you are telling objective, but what about subjective? काउट में मैम सब्जेक्टिव भी होता है, प्रिंस सर हमको बना के दिए थे. Yes. काउट में मैम थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का भी होता है. हाँ होता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर हुआ है उसमें काउट में ना. मैं एक दिन तो किए थे, इससे पहले जब पेपर लिए थे तो सब्जेक्टिव तो किए थे. सब्जेक्टिव का वो तो आपको मैंने करवाते हैं जबरदस्त एकदम. ओके, वर्ड फाइल आपको शो किया था, उससे आंसर दिखाना था. ठीक है ना. अगली बार कर लेंगे ना सब्जेक्टिव. ओके ओके ओके, बट टुडे वी विल डू द व्हाट कंबशन एंड फ्लेम. मैम आपका आवाज कंबशन एंड फ्लेम का रिवीजन दो मुझे. वेल then we will take the MCQ objective, चाहे true and false हो, चाहे Mentimeter हो, चाहे Kahoot हो, कुछ भी हो. Okay, but today you give me the revision of combustion and flame subjective part. Okay? Okay मैम काउट खेलने का बहुत मन हो रहा है. अरे खिलाऊंगी, बट बेटा खिलाऊंगी. नेक्स्ट क्लास 100% गारंटी लिख लो. ओके फाइन. तब तो इस साल इस क्लास में क्या खिलाओगी? खिलाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगी, रिवीजन लूंगी. ओके ओके. So first let's start the revision for the combustion and flame. I will be asking you the questions and you will be showing writing the answers through the chat, if it is 1 mark or if it is numerical. Okay, starting from the numerical. Okay, right. The question is 20 kg of a fuel has completely burned. 20 kg fuel लिया है आपने. Okay, 20 kg fuel. अच्छा एक मिनट मैम. Okay. 20 kg का fuel. 20 kg of fuel you have taken and it has completely undergone combustion and it led to the release of 1,80,000 kilojoules of heat. 1,18,000. 1,18,000. Okay. 80 or 18? 8. Okay. 1,18,000 kilojoules of fuel. It is heat is releasing. Okay. So what will be the calorific value of that particular fuel? 20 kg fuel लिया है आपने, 20 kg fuel लिया है, and on complete combustion it is producing 1,80,000. Yes. Ma'am, 1/5900. Don't shout, write the answer to the chat. I am waiting for the answers to the chat. So please give me the answers to the chat. Please give me the answers to the chat. मैम टाइम लगेगा मैम लिखने में. क्यों टाइम लगेगा? It will be quick calculation. It will not be taking too much time. How Chaitanya this year? मैम माइक से बता देंगे ना. I said 1,18,000. फ्यूल कितना लिया है आपने? 20 kg. Yes. On complete combustion. Can you repeat the question once again? 20 kg of fuel we have taken. And on complete combustion, it has produced 1,18,000 kilojoules of fuel. Kilojoule. Ma'am, is my answer right? No. Wait. अच्छा one. Okay. One. Okay. ठीक है बेटा. ठीक है मैम. Can you repeat the question, ma'am? 20 kg of fuel लिया है हमने और वो 1,18,000 किलोजूल ऑफ फ्यूल ने एनर्जी प्रोड्यूस किया. देखो वो लिखा है ना 1,18,000. ओके, तो अब यहाँ पे मैंने पूछा है कि उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है. व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल?
What is the calorific value of the fuel? Quickly. एक पर्सन ने दे दिया. What about others? What about others? अभी तक से एक ही पर्सन का आंसर आया है. Yes. Ma'am, please Sakshi, correct. repeat once more. मैंने पूछा अगर आपने एक फ्यूल लिया है उसमें 1,80,000 उसने 20 kg ऑफ फ्यूल लिया है 1,18,000 उसने एनर्जी प्रोड्यूस किया है तो व्हाट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल व्हाट विल बी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल Don't. व्हाई इतना इजी तो है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू नो सक्षम कैलकुलेशन इज रॉन्ग wait Arhan what is the definition of calorific value what is the definition of calorific value Ma'am, sir, may I tell? Ma'am, 6 kgs. the answer is 6 kg no Ma'am, may I tell the answer? मतलब मैं डेफिनेशन बताऊं क्या कि वो क्या होता है अपना Ma'am, the energy contained in a fuel or food determined by maintaining the heat produced the complete combustion per specific quantity of it. This is 900 kilojoules. नो मैम फॉल्स मैम नहीं आ रहा है मैम मैम इतना इजी है wait मैम कैन आई टेल व्हाट इज फॉर्मूला करेगा मैं आपको अनम्यूट करके ऑप्शंस दे रहे थे इसका मतलब ये नहीं यू विल बी जस्ट गोइंग ऑन शाउटिंग लाइक दिस ओके सो लेट मी आस्क द पर्सन हु इज गोइंग टू आंसर गुंजन Yes, ma'am. गुंजन बेटा टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू Ma'am, please may I answer? मैम क्या चैतन्य टेल Ma'am, can Naman tell? मैम कैन ब्रदर टेल ओके यस अब कौन बचा नमन Yes, ma'am. टेल मी द आंसर यस टेल मी द आंसर Yes, ma'am. Ma'am, the amount of heat produced by 1 kg of fuel is known as its calorific value. amount of heat produced per kg of the fuel amount of heat produced per kg of the fuel मैम प्लीज कैन आई ऐड समथिंग टू इट इससे अच्छा बोल सकते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोस मैम नहीं कंबशन आया मैम सो मच and during combustion the amount of energy which is produced is termed as Calorific value. calorific value that only am I right who is this Pulkit why you are writing all this मैम बाय मिस्टेक मैम amount of heat मैम उसका produced ऑप्शन नहीं आ रहा मुझे on complete combustion मैम Then fuel. एनोटेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम कैसे हटाऊं मैम रहने दो उसको भी okay so it is that amount of heat produced on complete combustion by per kg of the fuel मतलब पर kg कितना हीट प्रोड्यूस क्या कहलाएगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू अब मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक फ्यूल है जिसका 20 kgs जो है वो कितना कंप्लीट कंबशन में कितना प्रोड्यूस कर रहा है हीट 1,18,000
ओके 1,18,000 एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको क्या बोला, कैलोरीफिक वैल्यू पर कैलकुलेट करो, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको कितने में कैलकुलेट करना है कैलोरीफिक वैल्यू 1 kg, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू तो हम तो 1 kg में कैलकुलेट करते हैं ना, सो 1 kg विल प्रोड्यूस हाउ मच हीट, 1,18,000. Ma'am, can I tell? Yes. Ma'am, can I tell? Ma'am, 1 kg will produce, ma'am, 5,900 kilojoule per kg. Kilojoule per kg of the fuel energy. Yes, ma'am. वैल्यू है, इसी को वैल्यू देखो बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स तो ज्यादा नहीं है, इसी ये एक कैलोरीफिक वैल्यू वाला पहला न्यूमेरिक टाइप का न्यूमेरिकल है। अब बाकी अगर अदर जगह पे कहीं पे आएगा तो मैं आपको बता दूं। मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैम। क्यों नहीं समझ? आगे समझ। मैम एकदम सिंपल फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला किलो जूल पर केजी। अब देख इसमें कितना किलो जूल था, 1,80,000 बाय मतलब जितनी प्रोड्यूस होगी और जितना केजी ऑफ फ्यूल रहेगा उन दोनों को डिवाइड कर देना है। चैतन्य, नमन, विल यू लेट मी स्पीक? यस मैम, मैं तो म्यूट हो गया था। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेशन करने बोला। कैलोरीफिक वैल्यू याद रखना, हम कितने के लिए कैलकुलेट करते हैं, 1 kg के लिए। कितने फ्यूल के लिए? 1 kg बस। हाँ okay? आपको मैंने क्वेश्चन में दिया है 20 kg फ्यूल कंप्लीट कंबशन में 1,80,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक फ्यूल जो है 20 किलो पे जलने पे वो क्या दे रहा है, 1,18,000 एनर्जी दे रहा है, तो 1 किलो जलेगा तो कितना फ्यूल देगा, एनर्जी देगा। तो वही चीज करना है। तो 20 kg अगर 1,80,000 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 kg विल प्रोड्यूस हाउ मच, 1,18,000 डिवाइडेड बाई 20 and it will produce 20 equals to 5,900. ओके। इसी को थोड़ा सा और करते हैं। ओके, इसी को थोड़ा सा और करते हैं, एक और टाइप का, इसी टाइप का सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन। ओके, अ फ्यूल व्हिच इज हैविंग 10 kg, बहुत सिंपल है। 10 kg of fuel I have taken. Okay, I have taken how much? 10 kg of the fuel I have taken, and on complete combustion it is giving me 20,000. ओके, 20,000 kilojoules ऑफ एनर्जी दे रहा है मुझे। व्हाट इट इज, इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 10 kg अगर कंबशन करके मुझे 20,000 kilojoules ऑफ एनर्जी दे रहा है। यस सक्षम, करेक्ट। 1,000. मैम मेरा देखो मैम, सुर नो, मेरा देखो मैम। अभी तक से सक्षम का लास्ट मेरे पास आया है। देन 1 kg में 2,000 किलो जूल आएगा। करेक्ट, करेक्ट पुलकित। Ma'am, 2,000. यस मैम करेक्ट, 2,000 मैं भी बोला हूँ सबसे पहले। 2,000 किलो जूल है। यस चैतन्य also correct. ओके। सो हाँ, तो दिस वे यस क्वेश्चन है यस, बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन अगर ऐसा आया 1 kg से 2,500 प्रोड्यूस हो रहा है और हमें 30,000 का निकालने बोला है। हाँ, तो इंटू हो जाएगा ना। तो क्या वैसे क्वेश्चन आ सकता है क्या? वैसे आ सकता है। अब जैसे सपोज मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी। सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक फ्यूल है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू है 20,000, आप उसका 30 kg के लिए पता लगाइए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 30 into 2 Divide. 20,000। क्या हो जाएगा? नो मैम, इनटू मल्टीप्लिकेशन 30 हो जाएगा बस। ओके, इंटू 30, तो क्या इंटू 30 हो जाएगा। 20,000 इंटू 30 दैट मीन 60,000 हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन कर। कैलोरीफिक वैल्यू वाले में क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है? यस, नो मैम। नो, नहीं। ये पहला एक टाइप का। मैम ओके, यस एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम in last class you told that we will play Kahoot in next class. अरे लक्ष्य भाई, हम लोग अगली क्लास में खेलेंगे, चिंता मत कर। मेरा बेटा, आई विल 100% श्योर आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी, लेकिन आज थोड़ा सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, सब्जेक्टिव बहुत दिन से करना था मुझे। इस फाइनेंस सिलेबस बताइए ना, ऑल चैप्टर्स है। ऑल चैप्टर्स मैम क्या आपका हाफ ईयरली का प्रीवियस पोर्शन जो है, हाफ ईयरली से में क्या पोर्शन आया उसका चैप्टर। और अभी chemical effect, electric current, combustion and flame, all these chapters will come now. ओके, सो अभी जो करा रही कंबशन फ्लेम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कंबशन फ्लेम आएगा एंड वन मोर चैप्टर, टोटल 3 चैप्टर। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ
Chemical मैम effect ठीक of है। electric field. Total 3 chapters. And one more if I will add materials, metal and non-metals. Okay? Yes, ma'am. These 3 chapters I will add. Okay? And next question. Next question is there. Let me see. Combustion and flame. I explained the 3 zones of candle flame. मैम ओरली बोल दे सकते हैं इसको ओरली। Please, Chaitanya, No, can you repeat the question once again? explain the structure of candle flame. Explain the structure of candle flame. Candle flame का structure को explain करिए. This is a complete 3 marks question. ओके और उसमें क्या क्या पॉइंट होना चाहिए वो आप मेरे को बताओगे, क्योंकि इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 वर्ड बन सकता है, फिलअप बन सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी रह सकता है और एमसीक्यू भी रह सकता है. सो यू शुड बी थोरो विद दिस टॉपिक. ओके, zones on structure of candle flame. Arhan, only 3 children have raised the hand. That is common, which I am getting always the answers. Arhan, Yes, ma'am. tell me the explain me the structure of the candle flame. Structure of the candle flame. Structure of candle flame. Are you able to tell? Yes, Arhan. Ma'am, in the outermost part, the blue zone will come. In the middle part, the orange zone means the mid hottest part will come, and in the मतलब innermost part, the black part will come. The मतलब minimum heated part. अब ये बता दिया आपने इनर मोस्ट कौन सा है, ब्लू कलर कौन सा है. अब ये बताइए कहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा, कहाँ पे इनकम्प्लीट होगा और कहाँ पे नो कंबशन होगा. नो कंबशन एकदम इनर मोस्ट में होगा जो ब्लैक पार्ट रहता है. कंप्लीट कंबशन आउटर मोस्ट में होगा जो ब्लू पार्ट रहता है. और इनकम्प्लीट कंबशन होगा वो येलो और ऑरेंज पार्ट में, मिड पार्ट. अब इसी से रिलेटेड है लक्ष्य. कैन यू टेल मी व्हिच इज अ ल्यूमिनस जोन एंड व्हिच इज अ नॉन ल्यूमिनस जोन? Yes, ma'am. यस लक्ष्य. Lakshya. Yes, ma'am. Outermost zone is the luminous zone. Outermost zone is a luminous zone. There you got. Outermost zone is a non-luminous zone. Blue zone non-luminous रहेगा. मैंने आपको LPG का एग्जांपल लेके बताया था, याद है? LPG जब जलता है ब्लू कलर से जलता है तो इतनी रोशनी नहीं होती कि रूम में लाइट ला सके. The complete combustion zone जो रहेगा वो non-luminous रहेगा और जो इनकम्प्लीट का जोन रहता है, कंबशन वाला जोन रहता है जो ब्राइट येलो कलर से जलता है, जो कि बहुत ब्राइट रहता है, वो क्या रहेगा? ल्यूमिनस जोन रहेगा. ओके, द ल्यूमिनस जोन विल बी इनकम्प्लीट कंबशन जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस जोन विल बी द कंप्लीट कंबशन, दैट इज द ब्लू जोन. तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन आता है कि आपका ये डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द कैंडल फ्लेम, तो ये पॉइंट्स उसमें होना चाहिए कि कौन सा कंप्लीट कंबशन है, इनकम्प्लीट है, पार्शियल कंबशन है, कहाँ पे मैक्स हॉटेस्ट पार्ट है, कौन मॉडरेटली हॉट है, कौन मिनिमम हॉट है, और कौन सा जोन ल्यूमिनस जोन कहलाता है और कौन सा जोन नॉन ल्यूमिनस जोन कहलाता है. ये पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके आंसर्स में होने चाहिए. Okay, so this is the how you are going to discuss the structure of the candle flame. This is a 3 marks question. Okay, next question is that water kept in a paper cup. आपने एक पेपर कप लिया, डिस्पोजल आता है ना जिसमें चाय कॉफी पीते हैं, उस पे आपने यू हैव टेकन वाटर एंड आई एम हीटिंग इट, बट द कप डजंट कैच फायर. Why so? Rashi, you want to tell? Yes, Rashi. नो मैम. मैम मुझे ये कंफर्म करना था बस कैंडल का. Okay, so water taken. जैसे Yes, wait, क्या हुआ बेटा बोलो. मैम जैसे डिस्क्राइब करना है मतलब कैंडल के स्ट्रक्चर को, Candle flame. अगर ज्यादा मार्क्स का होगा तो जोन बताना है, उसके बाद उसके कलर और वही लुमिनस जोन अगर और और कंबशन.
हीट वाला पार्ट बताओगे कि कौन ज्यादा कम मॉडरेटली हॉट है और एक और ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है? तो मैम 4 पॉइंट्स काफी होंगे ना? हाँ ठीक है ना, मैं जब जो पॉइंट्स बोल रही हूँ मेन पॉइंट वाइज भी अगर लिखोगे तो नंबर आपको मिल जाए, ठीक है? क्योंकि सारे Okay, मेन ma'am. पॉइंट्स आपने बोल दिया, अब उसको इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट करके लिखने की जरूरत नहीं। Okay, now my question is that if I am taking water in a paper cup and I am heating it, why does that paper cup doesn't catch fire easily? Why? कोई बताओ? Chaitanya, are you ready to give the answer of that? Yes, ma'am. What happened? देखो, अब आपने you took a paper, you took water in it, and then you are heating it, suppose with a fire. So, ma'am, you are asking why does it not catch fire? So, ma'am, what happens is जब आप water डालते हो उस paper cup में, so the क्या बोलते हैं जो ignition temperature रहता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं ignition temperature बोल दे रहा हूँ मैं, तो ignition temperature जो रहता है ना वो बढ़ जाता है पानी के डालने के कारण, इसलिए वो catch नहीं कर पाता है। The condition is that when you are heating that paper cup containing water, the whatever heat you are supplying that is absorbed by the water. Water, ये भी मैं कहना चाह रहा था, absorption. Whatever heat you are supplying is absorbed by the water, so the ignition temperature of the paper cup is not reached. That's why it doesn't catches fire. Okay? किसी को टेम्परेचर को और क्या बोलते हैं मैम? Yes. इग्निशन टेम्परेचर को और क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर का अनदर नेम देखना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर गूगल करो। हाँ देख लो ना, इग्निशन टेम्परेचर अनदर नेम, we will both will see what is that. Another name, I think it is, no, it is not, so particular name is not given. Any another name is not there. मैम आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैच फायर इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर ना? it is also called as auto ignition temperature, मतलब वही तो हो गया, और kindling point. Auto ignition temperature or the kindling point also it is called. ठीक है, kindling point, okay, new word, I love to use it. Or the auto ignition temperature. Yeah. Okay. Now next question. Next question is what? Beta. Yes, simple one. I will ask the Keshav. Why some children are still there but not answering? Keshav. Keshav, I'm talking to you. Kriti. Lakshya. Yes, ma'am. Lakshya, tell me, why does a piece of paper burn with yellow flame? Ma'am, a piece of paper burns with yellow flame because Ma'am, can Chaitanya tell? Wait. But can you repeat the question? Daksha, no, ma'am. Ma'am, can you repeat question? Why does piece of paper burn with yellow flame? Why does piece? Ma'am, can I tell? Ma'am, Chaitanya. Wait, only Chaitanya, Pulkit, okay, Arham raised the hand. Okay, Arham. Ma'am. Yes, Arham, tell the answer. Ma'am, I am having a doubt, not to raise hand for tell the answer. Okay, tell. Ma'am, I hear Chaitanya properly. He said that when water in the cup, the ignition temperature rises up. So is water is a extra. क्या बोला मैंने उसको करेक्ट करके?
कि हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है क्या वाटर के जरिए। यही क्वेश्चन अगर मुझे डिफरेंटली प्लेस करना होगा तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डज द वाटर प्लेस इन अ पेपर कप बॉइल्स विदाउट बर्निंग द पेपर कप। अगर एक पेपर कप में वाटर लिया है तो वो वाटर बॉईल हो जाएगा बिना पेपर कप को जलाए। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। मैंने क्या बोला आपका, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ने से पहले क्या हो जाए, बढ़ेगा नहीं, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, जो भी हीट जा रहा है वो पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा और वो पानी उबलता जाएगा। ठीक है मैम, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना था। जो मैम आप बोल रहे हो ना हीट को अब्जॉर्ब करता है वाटर, तो मैम एक साइंटिस्ट था, उसने फाइंड आउट किया था कि आप कोई भी इमोशन, मान लो मैंने एक वाटर बॉटल ली प्लास्टिक की, कोई भी बिस्लरी, उसके ऊपर खुद के अंदर मान लो एक फीलिंग लाई दैट मैं बहुत एनर्जी से भरा हूँ, तो मैं उस पेपर में लिख दूंगा आई एम फुल ऑफ एनर्जी और वाटर में चिपका दूंगा। आप अगर अगले दिन देखोगे ना उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करोगे, तो मैम आपको इतना सुंदर अरेंजमेंट मिलेगा ना वाटर मॉलिक्यूल्स का। आप अब लिखोगे आई एम हैप्पी या फिर ऐसी कोई भी पॉजिटिव फीलिंग या इमोशन लिखोगे ना, वाटर बॉटल में चिपका दोगे बाहर से ही, तो वो ना उस फीलिंग को ना वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, बहुत अच्छा पैटर्न बनाता है अपने अंदर मॉलिक्यूल्स का। और अगर यहीं पे नेगेटिव देखोगे ना, बहुत गंदा अरेंजमेंट दिखता है आपको, नेगेटिव इमोशन या फीलिंग लिखने के अगले दिन। That means you want to say the water absorbs the emotions. Yes, yes, this was found out by a scientist. I'm not lying. Let me check in the YouTube if it is correct or not. Yes, it is very correct, I know, ma'am. Okay, so let's be coming back to the topic. अब मैं आपको मैंने बताऊं पेपर का आंसर, मैम प्लीज। Yes. See what happens, ma'am, when the paper is burned, ma'am, paper is having the non-complete combustion, ma'am. Therefore, it burn with a yellow flame. Incomplete combustion. There is also the supply. There is also the release of unburnt carbon. Okay, so that's why it is burning with a yellow flame. Okay. I was right, no? Yes. Okay, incomplete combustion हो रहा है, तभी वो हमारा क्या किस येलो फ्लेम मिल रहा है। महक 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 बेटा। Yes, ma'am. Tell me the next answer. Why isn't hydrogen gas used as a domestic or industrial fuel, although it is having a high calorific value? 3 reasons to justify your answer. Okay. Why isn't hydrogen gas used as a domestic or industrial fuel, although it is having a high calorific value? State 3 reasons for the answer. हाइड्रोजन जो होता है गैस, उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, फिर भी हम उसको ऐसा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल नहीं यूज करते। क्यों क्यों ऐसा क्या कारण है? मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई नमन? वेट मैं आई एम टॉकिंग टू यू। No. Mox. Can you repeat the question, please? Yes, ma'am. The question is hydrogen gas is having high calorific value. In spite of this, it is not used as a domestic fuel or the industrial fuel. Okay. Ma'am, please can I, Chaitanya? She is going to tell the answer. Mox is going to tell the answer. Yes, Mox. Yes, ma'am. Ma'am, the hydrogen's calorific value is 1,50,000. That is my question. इसकी calorific value इतनी क्यों नहीं यूज हो रहा है? Ma'am, Chaitanya, ma'am, please, I know very exact reason. Wait. Yes, Mox. I don't know. Okay. Let me give the chances to others also. Riddhima. Ma'am and Naman. Wait. Let me check the Riddhima also. Riddhima. So some children are sitting only for attendance. Slowly escaping out of the class. Later on, जब questions आएंगे तो मैडम ये question तो पढ़ाया नहीं, वो question तो discuss नहीं हुआ, then don't tell me this. Ma'am. Okay.
Naman, you tell. Naman. Yeah, Naman. Yes, ma'am. Ma'am, Maman. hydrogen's calorific value is very high, so it produces very large amount of heat first. Second, it get very easily in markets. Second, No, it doesn't get easily in market. Question is why it is not used as industrial fuel? Yes, ma'am, can I Chaitanya? Ma'am, please. Okay. ma'am, Yes, ma'am, ma'am, what happens is that, ma'am, yes, I will ma'am, Chaitanya will tell. ma'am, Naman, my chance is not Chaitanya, over. Ma'am, Naman. Wait. Chaitanya. Now I will ask the person whom I want to ask. Shelly? 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 Beta, tell me why hydrogen is not, gas is not used as industrial or domestic fuel? Ma'am, please. Ma'am, Wait, please. let Chance my is answer. not over. 3 children I am not teaching. I have to teach everyone. I have to catch everyone. I know 3 children are giving frequently answers in my class, and I know their name is here. Yes. Shelly, are you able to answer? Ma'am, मैं दूंगा अभी. Ma'am, please, may I, Naman? Ma'am, Chaitanya. Already get chance. Okay. Ma'am, Ma'am, can I not tell? for- Chances, let Naman answer. Yes, तो ma'am. गलत है, ma'am. Very harmful gas in environment. No, And ma'am. No. मैं क्या why? एग्जैक्ट रीजन दे रहा हूँ मैम. एक बार चांस दे दो. Okay, Chaitanya. हाँ मैम, बिकॉज आपने बोला ना इतनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन की, देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लॉट मास अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज वेस्टेड, सो देयरफॉर. And also second, ma'am, it is not easily available in markets and it is also costly. Okay. वो जो एनर्जी रहती है, हीट रहती है, वो वेस्ट हो जाती है. Listen, हाइड्रोजन गैस को डोमेस्टिक फूल और इंडस्ट्री फॉर्म में इसलिए Ma'am, can I tell? क्या टेल? Yes, ma'am. Ma'am, Laksh. Yes, Lakshya, tell. Ma'am, hydrogen gas can produce, ma'am, unburnt particles, and it can produce poisonous gases. Okay. Ma'am, okay. Ma'am, and also there is a problem in transporting hydrogen gas. Okay. Ma'am, and it can react with air also. अब आधा सही कुछ हद तक सही है. अब सुनो इसको. आपने क्या बोला? हाई ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है. ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है. हाईली इन्फ्लेमेबल होता है हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत डेंजरस है. दूसरा, इट बर्न्स विद एन एक्सप्लोशन. इट क्या होता है? इट बर्न्स विद अ एक्सप्लोशन. जो हाइड्रोजन गैस होता है जब जलता है तो एक्सप्लोशन क्रिएट करता है. एक्सप्लोशन मतलब साउंड. तो अगर आप घर में कंबशन कर रहे हो तो सोचो कितना एक्सप्लोसिव साउंड आएगा. ओके, क्लियर? कितनी एनर्जी रिलीज होगी. दूसरा चीज, ये आपका कोल पेट्रोलियम वगैरह से भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. इट इज वेरी हाईली इन्फ्लेमेबल. ट्रांसपोर्टेशन हो गया. और सबसे मेजर ड्रॉबैक है कि ये कंबशन में एक्सप्लोसिव साउंड क्रिएट करता है. आप अगर ये साउंड क्रिएट करेगा तो क्या आप इसको कंबशन के लिए यूज कर सकते हो? क्या नहीं यूज कर सकते ना, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग द कंबशन सम और द अदर साउंड इज कमिंग, isn't that? So that's why you can't prefer it for the industrial and domestic purpose. Okay, is it clear? Next. मैम डाउट. Yes, बोलो. मैम कहीं जगह हाइड्रोजन को हीलियम के साथ रिप्लेस करते हैं और आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन महंगा आता है, बल्कि हीलियम महंगा आता है, तो हाइड्रोजन को उसके साथ रिप्लेस क्यों करते हैं अगर हाइड्रोजन महंगा आता है तो? किसके साथ? हीलियम के साथ. हीलियम, HELIUM. ऑक्सीजन सिलेंडर में मिक्स किया जाता है हीलियम के साथ. जो लेके जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज, डाइवर्स जो रहते हैं ना, सी डाइवर्स, मतलब वो गोताखोर लोग रहते हैं, उन लोग जो
सिलेंडर लेके जाते हैं, वो सिलेंडर में हवा भरी रहती है, वो हवा में हम लोग हीलियम की मिक्सिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो हवा जो रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और अगर नाइट्रोजन अब हवा को आप टाइप भर के लेके जा रहे हो सांस लेने के लिए, तो नाइट्रोजन आप उसमें तो नाइट्रोजन ज्यादा है, तो नाइट्रोजन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, अब उन लोग कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते जाएंगे। अब कंटिन्यूअसली अगर आप नीचे नीचे जैसे जैसे जा रहे हो, आप जैसे जैसे नीचे सी डाइविंग करते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो नाइट्रोजन गैस की सॉलिबिलिटी भी बढ़ते जाती है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम जाती है और एक पॉइजनस सब्सटेंस बनने लगता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन ज्यादा मिक्स ना हो, तो हाँ इसलिए कारण से हम लोग क्या करते हैं, हीलियम की मिक्सिंग कर देते हैं, ताकि नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी जो है ब्लड में कम हो जाए, ताकि नाइट्रोजन का अमाउंट कम होगा, उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। हम हाइड्रोजन सिलेंडर की बात में, हाइड्रोजन सिलेंडर में हीलियम नहीं मिक्स करते बेटा, जो सिलेंडर्स जो होते हैं ना, जो सांस लेने के लिए यूज करते हैं डाइवर्स, उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। वो भी कारण ये है कि नाइट्रोजन उसमें ज्यादा होता है, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा हो जाती है ब्लड में, तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये प्रॉब्लम ना हो इसी कारण से हम हीलियम मिक्स करते हैं, ताकि अगर हीलियम इनहेल होगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके मैम वन मोर डाउट। यस मैम जैसे कुछ गैस वाली बलून भी आती है ना, उसमें भी बोला जाता है कि हीलियम रहता है, पर नहीं उसमें हाइड्रोजन रहा जाता है, और गैस वाली बलून मतलब ऊपर ऊपर तो जाएगी ही वो। किसमें बेटा, किसमें? गैस वाली बलून में हीलियम रहता है ऐसा बोला जाता है, पर उसमें हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन रहता है बेटा, हाइड्रोजन भरा जाता है, हीलियम के तो बलून यूज करते हैं, हाइड्रोजन बलून यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट रहता है इसलिए। मैम हाँ, जैसे कि आपने बताया हाइड्रोजन ना फ्लेम इन मतलब बहुत ऐसा एक्सप्लोसिव टाइप का रहता है मटेरियल, तो फिर अगर वो सराउंडिंग्स के ऊपर जाएगा, उधर फैक्ट्रीज वगैरह की तरफ चले जाएगा, तो ऐसा फटेगा कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक्सप्लोशन हो जाएगा अगर आप उसमें कुछ कंबशन का कुछ ऐसा दोगे, तो कंबशन का ऐसा कुछ दोगे तो एक्सप्लोशन होगा, आप बिना कुछ दिए तो एक्सप्लोशन नहीं होगा क्या? हम ट्रांसपोर्टेशन करने का सबसे बड़ा